Yes, yes, yes. ये डीडी वाला गड़बड़ करेगा। डीडी
Good. S'il vous plaît, on a besoin d'avoir le Dans le programme là, que nous avons développé, mais avoir des étudiants indiens qui viennent en France connaître notre culture, différentes régions, nos sciences, etc., est très important pour nous. C'est l'échange humain qui permet de tester. Bonjour monsieur, bienvenue à Jaipur. Alors comme vous avez déjà dit que c'est important d'avoir une culture et une culture. Et aussi j'étais en France comme assistant de l'anglais en 2020 et je voudrais juste poser une question. Comment vous restez en pleine forme? Vous avez une journée bien chargée. Et comment ça s'est passé dans votre vie? Comment vous êtes en pleine forme? Toujours. Parce que j'y crois, que j'aime ce que je fais, c'est la meilleure façon de le faire, donc c'est l'enthousiasme. Et c'est de porter par les gens parfois les difficultés, il faut les affronter, mais aussi être porté par l'enthousiasme et toutes les choses qu'il y a à faire. Et quand on voit tout ce qui est à faire, à bâtir, regardez, j'étais là, moi, il y a 5 ans, on a déjà fait beaucoup de choses, mais on a des tas de choses à faire ensemble, donc ça donne de la motivation, voilà. L'enthousiasme. Étymologiquement, enthousiasme, qui existe aussi en anglais, enthousiasme, ça veut dire le petit Dieu en vous. Le plus fort que Dieu. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Anushka et j'ai visité France dernière année en septembre pour un programme d'étudiants d'échange et c'était la meilleure expérience de ma vie. Donc, je veux vous demander quel est votre meilleur souvenir de l'Inde que vous avez déjà visité? D'abord, on est en train de les construire, donc je ne vais pas vous dire, je vous dirai plus facilement demain soir en repartant, mais j'en ai un de ma visite de 2018 qui était sans doute le long passage qu'on avait fait avec le Wallis Modi à Bénarès. C'était très émouvant. Très émouvant. Voilà. Mais je suis en train de construire de nouveaux souvenirs avec vous. Et ici au Rajasthan. Je découvre. Très heureux. Bonjour monsieur, alors je m'appelle Barani, je suis une étudiante de français, master en français et je m'inscris pour le programme d'assistant d'anglais pour cette année. Alors ma question est qu'il existe beaucoup de différences entre Inde et la France au niveau de culture. Alors pourquoi, pour quelle raison vous recommanderiez à une étudiante d'Inde d'aller en France pour des études? D'abord, la différence, c'est ce qui nous enrichit. Ensuite, je pense que vous n'êtes pas qu'une culture. L'Inde est déjà à creuser de milliers de cultures en soi. Comme je le disais, je pense qu'il y a des choses très profondes qui nous unissent. Une créativité, un rapport à la fois, je dirais, à la transcendance, et puis une créativité, une inventivité qui a à la fois artistique, gastronomique, scientifique. Donc je pense qu'il y a beaucoup de liens qui préexistent. Ensuite, je pense que la France est une formidable porte d'entrée pour l'Europe, Bien sûr. et pour le continent africain, qui est pour une grande partie francophone. Et moi, je pense que l'Inde est un pays qui nous comprend mieux que beaucoup d'autres aussi dans la région, et qui est une grande porte d'entrée. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a pris cette initiative, et qu'avec le Premier ministre Modi, on a dit on veut développer l'enseignement des deux côtés, et que nous, on a cet objectif de passer à 30 000 étudiants. Et j'aimerais que, grâce à vous, à tout le travail de Campus France et nos universités, on y aille même beaucoup plus vite. C'est faisable. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. से समय को नापते हैं और वहां की जो घड़ी है वो आपको बताती है कि कितना वक्त हो गया है। तो भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती के एक नए युग की शुरुआत, उसमें उसका जो वक्त है
वो भी बेहतरीन हो चला है। और इन तस्वीरों के जरिए दो महाशक्तियां अगर हम कहें पूरी दुनिया की, तो इस वक्त अपने साझे हितों को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए खासतौर पर सांस्कृतिक तौर पर और हेरिटेज डिप्लोमेसी के जरिए इस वक्त बिल्कुल तैयार अगले मैग्निफिसेंट रोड शो के लिए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही मनोरम दृश्य, मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं पीछे जयपुर का जंतर मंतर। 1724 से लेकर 1734 के बीच ये गार्ड, मुझे लगता है कि ये जो टूरिस्ट टूर गाइड हैं वो बता रहे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट को किस सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे थे, एकदम कोई हार्ड टॉक्स नहीं, आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत नहीं। ये बात चल रही भाई जंतर मंतर में कैसे भारत की प्राचीन तकनीक के जरिए हम कैसे समय को सूर्य के साथ जोड़ करके देखते थे, और दिल्ली में भी एक जंतर मंतर है जहां पर आप सूर्य की छाया से समय को नापते हैं और वहां की जो घड़ी है वो आपको बताती है कि कितना वक्त हो गया है। तो भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती के एक नए युग की शुरुआत, उसमें उसका जो वक्त है वो भी बेहतरीन हो चला है। और इन तस्वीरों के जरिए दो महाशक्तियां अगर हम कहें पूरी दुनिया की, तो इस वक्त अपने साझे हितों को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए खासतौर पर सांस्कृतिक तौर पर और हेरिटेज डिप्लोमेसी के जरिए इस वक्त बिल्कुल तैयार अगले मैग्निफिसेंट रोड शो के लिए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही मनोरम दृश्य, मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं पीछे जयपुर का जंतर मंतर। 1724 से लेकर 1734 के बीच ये गार्ड, मुझे लगता है कि ये जो टूरिस्ट टूर गाइड हैं वो बता रहे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट को किस तरह से ये काम करता है। हम आपको बताते हैं अपने दर्शकों को कि 1724 से लेकर 1734 के बीच इसका निर्माण किया गया था। खगोलीय वेधशाला इसे कहा जाता है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। और यहाँ अगर आप जाएं तो यहाँ बहुत ही 14 प्रमुख यंत्र हैं जो कि समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति और स्थिति, सौर मंडल के ग्रहों, इन तमाम चीजों के बारे में आप यहाँ पे जानकारी हासिल कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस जगह को चुना ताकि भारत किस तरह से अपने ऐतिहासिक तौर पर भी, इसका मतलब है क्या पूरी दुनिया के लिए, ये अभूतपूर्व तस्वीरें जो हैं उनका मतलब है क्या, ये समझाएं हमारे दर्शकों को। अमृतपाल सिंह, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये दृश्य वाकई अभूतपूर्व हैं, ऐतिहासिक हैं। किस तरह से विश्व के दो बड़े नेता एक साथ जयपुर में इस वक्त मौजूद, और भारत का भविष्य, चाहे वो डिफेंस की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में सांस्कृतिक संबंधों की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के संबंध लगातार समृद्ध होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं अमृत? हाँ, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आपको आपकी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है अमृत। इन तस्वीरों को जरा हमें समझाने की कोशिश करें कि क्यों, और एक झलक पाने के लिए दोनों ही नेताओं की, विश्व स्तर के दोनों ही नेता, इन दोनों की ही झलक पाने के लिए जयपुर की सड़कों पे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक, 25 जनवरी का दिन, जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की सरजमी पर, और वो 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल होने के लिए इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमी पर मौजूद हैं। और इन तस्वीरों के जरिए जयपुर पिंक सिटी, इसका वो मुआयना कर रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। और इससे पहले हमने कहा कि आमेर का किला, जंतर मंतर, इन तमाम जगहों पर वो गए और उन्होंने वहां पे देखा। और इस तरह से भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक और नए अध्याय की आज से शुरुआत होने जा रही है। छठे ऐसे नेता वो बन गए हैं जो कि गणतंत्र दिवस परेड में वो शामिल होने के लिए भारत में वो इस वक्त आए हुए हैं। कल गणतंत्र दिवस में आपको वो कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगे। आज उससे पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं। हमने देखा एयरपोर्ट पर किस तरह से विदेश मंत्री और तमाम जो बड़े नेता है वो वहां पे उनकी अगवानी के लिए मौजूद थे। भारत और फ्रांस के रिश्तों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर आज के दिन को, इस समारोह को देखा जा सकता है। अजय, ये दृश्य सामान्य नहीं है, ये सांस्कृतिक शोभा यात्रा है। ये दोनों देशों के बीच बढ़ती हुई सांस्कृतिक संबंधों की प्रगाढ़ता का प्रतीक, उसकी यात्रा है। ये दो विश्व मित्रों के एक साथ मिलने और दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की शोभा यात्रा है। ये ऐसे दृश्य हैं जिन पर केवल फ्रांस और भारत की निगाहें नहीं हैं, बल्कि ये समूचा विश्व इन दृश्यों को देख रहा है कि कैसे दो महाशक्तियां, भारत जो कि दुनिया का